السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل پھانس کے نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ کافی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ فرح ہاشم سے محبت کرتی ہے، لیکن ہاشم زیبا سے پیار کرتا تھا، اس لیے فرح کچھ بھی نہیں کر پائی۔ لیکن اب زیبا کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کے بعد فرح کو بہت اچھا موقع مل گیا ہے ہاشم کے ساتھ شادی کرنے کا۔ اس کے بعد فرح ہاشم کے گھر پہ چلی جاتی ہے تو فرح کی والدہ اس کو لینے کے لیے وہاں پر جاتی ہیں۔ اس کے بعد فرح کی والدہ اس کو لینے کے لیے آتی ہیں تو ہاشم ان کو منع کر دیتا ہے۔ ہاشم فرح کی والدہ سے کہتا ہے کہ فرح اب میرے ساتھ رہے گی، جس کے بعد فرح کی والدہ کہتی ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، فرح یہاں پر ایسے تمہارے ساتھ کس طرح سے رہ سکتی ہے، جس کے بعد ہاشم فرح کی والدہ سے کہتا ہے کہ فرح اسی گھر میں میرے ساتھ رہے گی۔ یہ بات سن کے فرح کی والدہ ہاشم کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں تو فرح بھی ہاشم کی بات سن کے بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ فرح تو چاہتی ہی یہ تھی اور اب ہاشم کے منہ سے سن کے فرح بہت زیادہ خوش ہو گئی ہے، جس کے بعد ہاشم فرح کی والدہ سے کہتا ہے کہ میں فرح سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہتا ہوں، میرے ساتھ ہی رہے گی فرح۔ یہ بات سن کے فرح کی والدہ وہاں سے چلی جاتی ہیں، جس کے بعد ہاشم فرح سے کہتا ہے کہ فرح میں تم سے پیار کرنے لگ گیا ہوں اور اب ساری زندگی تمہارے ساتھ شادی کر کے گزارنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ یہ بات سن کے فرح ہاشم کی طرف دیکھتی ہے اور مسکرانے لگ جاتی ہے، کیونکہ فرح تو پہلے ہی ہاشم سے پیار کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ فرح کی تو دلی خواہش پوری ہو گئی ہے، جبکہ فرح کی والدہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی ہیں۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ زیبا کی والدہ جب گھر پہ آتی ہیں تو زیبا پوچھتی ہے کہ فرح کہاں پر ہے۔ زیبا کی والدہ بڑی پریشان ہوتی ہیں۔ زیبا ان سے کہتی ہے کہ امی کیا ہوا، اتنی پریشان کیوں ہیں آپ؟ جس کے بعد زیبا کی والدہ زیبا سے کہتی ہیں کہ وہ ہاشم ہے نا۔ یہ بات سن کے زیبا کہتی ہے کہ ہاں بتائیں امی، ہاشم کو کیا ہوا؟ جس کے بعد زیبا کی والدہ کہتی ہیں کہ ہاشم فرح سے نکاح کر رہا ہے، ہاشم فرح سے شادی کرنا چاہ رہا ہے، ہاشم نے کہا ہے کہ میں فرح سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات سن کے زیبا ایک دم حیران ہو جاتی ہے اور اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ زیبا کی والدہ اس کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہیں، یعنی زیبا کی والدہ ہاشم کی بات سن کے بہت زیادہ دکھی ہو گئی ہیں کہ ہاشم نے بھی زیبا کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی زیبا کے ساتھ یہ سب کچھ ہونے کے بعد سے زیبا کی والدہ بہت زیادہ زیبا کے لیے پریشان ہو گئی ہیں۔ جس کے بعد زیبا اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ امی آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں، فرح میری بہن ہے، اگر ہاشم اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ساحل اس سب میں بے گناہ ہے، لیکن زیبا نے ساحل پہ الزام صرف سراج صاحب کی وجہ سے ہی لگایا ہے، کیونکہ زیبا سراج صاحب کا چہرہ سب کے سامنے لانا چاہتی ہے اور سمد نے ہی زیبا کو مشورہ دیا تھا کہ وہ ساحل پہ الزام لگا دے، پھر ہی سراج صاحب اپنا جرم خود قبول کریں گے، کیونکہ ان کے لیے اپنا بیٹا ساحل بہت زیادہ اہم ہے اور وہ اس کی خاطر سب کچھ کر دیں گے۔ یعنی زیبا نے ساحل پہ الزام لگایا ہوا ہے، اس کے بعد ساحل سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوتا۔ ساحل زیبا کے گھر پہ آ جاتا ہے، ساحل دروازوں کے باہر کھڑا ہوتا ہے تو زیبا کی والدہ کہتی ہیں کہ ساحل تم یہاں سے چلے جاؤ۔ جس کے بعد ساحل زیبا سے کہتا ہے کہ زیبا مجھے پتا ہے تم یہاں پر ہو، زیبا تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہو؟ یہ بات سن کے زیبا خاموش ہو جاتی ہے تو زیبا کی والدہ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ساحل باہر کھڑا ہوا کہتا ہے کہ زیبا مجھے پتا ہے تم سمد بھائی کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور یہ سب کچھ تم سمد بھائی کے کہنے پر ہی کر رہی ہو، تم میرے پہ الزام سمد بھائی کی وجہ سے ہی لگا رہی ہو، تم اور سمد بھائی ملے ہوئے ہو زیبا۔ یہ بات سن کے زیبا کی والدہ اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ زیبا کی والدہ کو ابھی اصلی حقیقت کے بارے میں نہیں پتا اور نہ ہی زیبا نے کسی کو بتایا ہے۔ زیبا وہی کر رہی ہے جو سمد اس سے کہہ رہا ہے، کیونکہ سمد زیبا سے اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ سراج صاحب کا چہرہ سب کے سامنے آ جائے۔ جس کے بعد ساحل بہت زیادہ روتا ہے، ساحل بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ زیبا سے ساحل کی حالت دیکھی نہیں جاتی، لیکن زیبا خود کو مضبوط کرتی ہے۔ زیبا سوچتی ہے کہ مجھے سراج صاحب کا چہرہ بس سب کے سامنے لانا ہے، اس نے میرے ساتھ جو گھنونا کھیل کھیلا ہے، اب میں اس کے ساتھ یہ کھیل کھیل کر اس کا گندا چہرہ سب دنیا کے سامنے لا کے رہوں گی۔ یعنی ساحل بہت زیادہ رونے لگ جاتا ہے۔ جس کے بعد ناظرین آپ دیکھیں گے کہ ساحل کے گھر والے زیبا کے گھر پہ آ جاتے ہیں، یعنی جب ساحل کے گھر والے سراج صاحب اور نادیہ بی بی ساحل کو لینے کے لیے وہاں پر آ جاتے ہیں تو زیبا دروازہ کھول دیتی ہے۔ زیبا جب سراج صاحب کو دیکھتی ہے تو زیبا کو بہت زیادہ غصہ آنے لگ جاتا ہے، جس کے بعد زیبا ساحل کو برا بھرا کہنے لگ جاتی ہے، کیونکہ زیبا یہ سب کچھ سراج صاحب کی وجہ سے کر رہی ہے تاکہ سراج صاحب کو غصہ آئے اور وہ اپنا جرم خود قبول کر لے۔ جس کے بعد نادیہ بی بی سے سب کچھ دیکھا نہیں جاتا۔ نادیہ بی بی اپنے بیٹے ساحل کو بچانے کے لیے زیبا سے کہتی ہیں کہ زیبا تم سمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو اور یہ تم جو کھیل کھیل رہی ہو، تمہارا اصلی چہرہ میں سب کے سامنے لا کے رہوں گی۔ نادیہ بی بی زیبا سے کہتی ہیں کہ زیبا اب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو کے رہے
रहे गا, तुम ये जिसके कहने पर कर रही हो उसने खुद अपना जुर्म तस्लीम कर लिया है। ये बात सुनकर ज़ेबा अपनी वालदा की तरफ देखने लग जाती है तो ज़ेबा की वालदा नादिया बीबी की तरफ देख रही होती हैं। सिराज साहब ये सब कुछ देखने के बाद खामोश हो जाता है क्योंकि सिराज साहब को डर लग रहा है कहीं मेरा चेहरा सबके सामने आ ना जाए और मेरी असलियत सबके सामने खुल ना जाए, जिसके बाद सिराज साहब खामोश रहता है। जबकि नादिया बीबी साहिल से कहती है कि साहिल अब तुम ही बताओगे कि असली मुजरिम कौन है और मेरा बेटा अब साहिल दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। जिसके बाद साहिल ज़ेबा की तरफ देखने लग जाता है तो ज़ेबा भी साहिल और नादिया बीबी की तरफ देख रही होती है। साहिल कहता है कि ज़ेबा तुम समद भाई के साथ मिलके मेरे साथ इस तरह से कर रही हो, ज़ेबा तुम बहुत गलत कर रही हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, तुम मुझे क्यों कसूरवार ठहरा रही हो सबके सामने। ये बात कहने के बाद नादिया बीबी ज़ेबा से कहती हैं कि ज़ेबा अभी भी संभल जाओ, अगर तुमने मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल करूंगी। ये बात कहने के बाद सिराज साहब और नादिया बीबी साहिल को लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। जिसके बाद सिराज साहब ज़ेबा को देखने लग जाते हैं तो ज़ेबा उनकी तरफ देखते हुए सोचती है कि सिराज साहब तुम्हारा चेहरा तो मैं सबके सामने ला के ही रहूंगी, इसके लिए मुझे जो मर्जी करना पड़े मैं करूंगी और मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटूंगी। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि सिराज साहब और नादिया बीबी साहिल को वहाँ से लेके चले जाते हैं, जबकि ज़ेबा की वालदा बड़ी कश्मकश में हो गई हैं। ज़ेबा की वालदा को असल हकीकत के बारे में ही नहीं पता। ज़ेबा की वालदा बड़ी परेशान हो गई हैं। ज़ेबा की वालदा ज़ेबा की तरफ देखने लग जाती हैं। उसके बाद ज़ेबा की वालदा कहती हैं कि ज़ेबा ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके बाद ज़ेबा अपनी वालदा से कहती है कि अम्मी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो मुजरिम है उसका चेहरा तो मैं बेनकाब करके ही रहूंगी, चाहे वो जितना मर्जी अपने आप को बचा ले। तो जबकि दूसरा नाज़रीन आप देखेंगे कि फरा समद के घर पे चली जाती है। फरा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा। फरा समद से कहती है कि तुमने मेरी बहन ज़ेबा की जिंदगी खराब कर दी है। ये बात सुन के समद फरा की तरफ देखने लग जाता है। उसके बाद फरा समद से कहती है कि तुम्हें पता भी है मेरी बहन ज़ेबा के साथ क्या हो गया है, तुम्हारी इस गंदी हरकत की वजह से मेरी बहन आज मुश्किल में है। ये बात सुन के समद फरा से कहता है कि क्या हुआ ज़ेबा को। उसके बाद फरा समद से कहती है कि तुम्हें पता है मेरी बहन ज़ेबा तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। ये बात सुन के समद एकदम हैरान हो जाता है और फरा की तरफ देखने लग जाता है। उसके बाद फरा समद से कहती है कि तुम शराफत के साथ अपना जुर्म कबूल कर लो और मेरी बहन और इस बच्चे को अपना लो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मेरी बहन सारी जिंदगी रुसवा हो जाएगी। ये सारी बातें सुन के समद बड़ा परेशान हो गया है। तो जिसके बाद नाजरीन आप देखेंगे कि समद ने जब से फरा की बात सुनी है कि ज़ेबा माँ बनने वाली है, तब से समद बड़ा परेशान हो जाता है। उसके बाद समद ज़ेबा को फोन करता है। ज़ेबा समद का फोन उठाती है। यानी ज़ेबा ने अपनी वालदा से असल हकीकत ने सच्चाई छुपाई हुई है, जबकि ज़ेबा की वालदा इसी तलाश में है कि मुझे असल कहानी असल हकीकत सच्चाई के बारे में पता चल जाए। ज़ेबा की वालदा ज़ेबा की बातें पीछे खड़े हुए सुन रही होती हैं। ज़ेबा समद से बात कर रही होती है। जिसके बाद ज़ेबा समद से कहती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। उसके बाद समद ज़ेबा से कहता है कि ज़ेबा तुम क्यों समझ नहीं रही, तुम बस साहिल पे ही इल्ज़ाम लगाओ क्योंकि सिराज साहब अपने बेटे साहिल को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। उसके बाद ज़ेबा समद से कहती है कि समद तुम जैसे कह रहे हो मैं वैसे ही कर रही हूँ और मैं क्या करूँ। जिसके बाद समद ज़ेबा से कहता है कि ज़ेबा अब जैसा मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुमने वैसे ही करना है, क्योंकि सिराज साहब को साहिल अपना बेटा बहुत ज़्यादा अजीज है। तुमने साहिल को ही मुजरिम तस्लीम करना है, बस तुमने साहिल पे ही इल्ज़ाम लगाए रखना है क्योंकि सिराज साहब साहिल के लिए कुछ भी करेंगे और वो हो सकता अपना जुर्म भी कबूल कर ले। बस तुमने वैसे ही करना है जैसे मैं कह रहा हूँ तुमसे। ये बात सुन के ज़ेबा समद से कहती है कि अच्छा समद तुम जैसे कह रहे हो मैं वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कब अपना जुर्म तस्लीम करेगा। जिसके बाद समद ज़ेबा से कहता है कि ज़ेबा बस तुम थोड़ा इंतजार करो, मुजरिम को अपना जुर्म तस्लीम करने में थोड़ा वक्त लगता है। ये सारी बातें ज़ेबा समद के साथ कर रही होती है। ज़ेबा की वालदा ज़ेबा की सारी बातें पीछे खड़े हुए सुन रही होती हैं। जिसके बाद ज़ेबा बड़ी परेशान हो जाती है। उसके बाद ज़ेबा समद से कहती है कि समद मैं तुम्हें कह रही हूँ बस मुझे तुमसे मिलना है, तुम इसी वक्त मेरे घर पे आओ। समद कहता है कि ज़ेबा तुम परेशान ना हो, मैं आ जाऊंगा। ज़ेबा समद से कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता। समद तुम मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर आ रहे हो कि नहीं, मुझे तुमसे मिलना है, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। जिसके बाद समद ज़ेबा से कहता है कि अच्छा ज़ेबा मैं आ रहा हूँ, बस तुम परेशान ना हो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि समद की वालदा को कुछ समझ नहीं आ रहा। समद की वालदा समद से कहती है कि कहाँ जा रहे हो समद। जिसके बाद समद अपनी वालदा से कहता है कि मैं ज़ेबा के घर जा रहा हूँ। समद की वालदा उससे कहती है कि बेटा तुम इस उसमें क्यों पढ़ रहे हो, तुम्हें इस चक्कर में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उस लड़की को उसके हाल पे छोड़ दो, तुम अपने आप को क्यों फंसा रहे हो इस चक्कर में। जिसके बाद समद अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी आप क्यों नहीं समझ रही, मुझे जाना है बस ज़ेबा के पास, उसकी बात सुननी है, मुझे ज़ेबा की मदद करनी है। जिसके बाद समद की वालदा कहती है कि समद मुझे तुम सच से बताओ असल हकीकत क्या है और क्या सच है, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो तो मुझे बताओ,
जिसके बाद समद अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। समद की वालदा उससे कहती है कि समद मुझे तुम सच बताओ, सच क्या है। जिसके बाद समद गुस्से में आ जाता है। समद अपनी वालदा की बात नहीं सुनता। उसके बाद समद कहता है कि अम्मी आप मुझे परेशान ना करें, पहले ही बहुत देर हो गई है, बस मुझे ज़ेबा के पास जाना है। जिसके बाद समद की वालदा उसको आवाज़ देने लग जाती हैं, लेकिन समद अपनी वालदा की बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। समद की वालदा बड़ी परेशान हो गई हैं। समद की वालदा को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह अपने बेटे को इस मुश्किल से बचाएं। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि समद ज़ेबा के घर पे चला जाता है, क्योंकि समद ने ज़ेबा से वादा किया है कि वो उसका आखिरी दम तक साथ देगा। जिसके बाद समद ज़ेबा के घर पे चला जाता है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि जब समद ज़ेबा के घर पे जाता है तो ज़ेबा बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। समद ज़ेबा को रिलैक्स करता है। समद ज़ेबा से कहता है कि ज़ेबा तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। जिसके बाद ज़ेबा समद को सब कुछ बताने लगती है कि साहिल और उसके घर वाले मेरे घर पे आए थे और उन्होंने ये सब कुछ कहा है। जिसके बाद समद ज़ेबा से कहता है कि ज़ेबा मैं तुमसे वादा करता हूँ ज़ेबा कि सिराज साहब की असलियत मैं सबके सामने ला के रहूंगा। जिसके बाद ज़ेबा कहती है कि जो तुमने कहा है मैं वैसे ही कर रही हूँ, लेकिन अभी तक सिराज साहब ने अपना जुर्म तस्लीम नहीं किया। जिसके बाद समद ज़ेबा से कहता है कि ज़ेबा मैंने तुम्हें कहा ना कि साहिल के लिए वो कुछ भी करेंगे, साहिल उनका बेटा है, वो अपने बेटे के लिए सब कुछ करेंगे, वो अपना जुर्म भी तस्लीम कर लेंगे। जिसके बाद ज़ेबा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और समद से कहती है कि समद अब मैंने कुछ नहीं सुनना तुमसे, बस तुम अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें कह रही हूँ तुमने वैसे ही करना है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि समद ने ही ज़ेबा को कहा है साहिल पे इल्जाम लगाने का। ज़ेबा समद से कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने उस मासूम साहिल पे इल्जाम लगा दिया है, मुझे अब कुछ नहीं पता, तुमने जो करना है जल्दी करो। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि समद ज़ेबा से कहता है कि ज़ेबा अब तुम परेशान ना हो, अब तुम जैसा चाह रही हो वैसा ही होगा। यानी आने वाली एपिसोड में नाज़रीन आप देखेंगे कि ज़ेबा और समद मिलके सिराज साहब की असलियत सारी दुनिया के सामने ला के रहेंगे और फिर सिराज साहब इतना मजबूर हो जाएंगे कि अपना जुर्म वो खुद तस्लीम कर लेंगे। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे समद ज़ेबा की सारी बातें सुन के बड़ा परेशान हो जाता है कि साहिल के घर वाले उसके घर आए थे और ये सब कुछ उन्होंने कहा है। जिसके बाद समद साहिल को फोन करता है। साहिल समद का फोन उठाता है। उसके बाद समद साहिल से कहता है कि साहिल तुम्हें बात समझ क्यों नहीं आ रही, तुम ज़ेबा के घर बार बार क्यों जाते हो, तुम ज़ेबा को परेशान क्यों करते हो। उसके बाद साहिल समद से कहता है कि समद तुम कौन होते हो मुझे ज़ेबा के घर मना करने से। जिसके बाद समद साहिल से कहता है कि मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम ज़ेबा के घर पे गए या तुमने ज़ेबा से कोई राब्ता रखने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सारी बात करने के बाद समद फोन बंद कर देता है। समद के फोन बंद करने के बाद साहिल बड़ा परेशान हो जाता है। साहिल को समझ नहीं आ रहा कि ये सब कुछ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने तो किसी के साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन सब मुझे बुरा ही क्यों कह रहे हैं। यानी साहिल बड़ा परेशान हो गया है। जिसके बाद नाज़रीन आप देखेंगे कि साहिल ज़ेबा को पसंद करने लग गया था, लेकिन ज़ेबा ने साहिल पे इस तरह का इल्जाम लगा दिया है। जिसके बाद साहिल बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान हो गया है। साहिल बहुत ज़्यादा उदास होता है तो साहिल की वालदा नादिया बीबी साहिल से कहती है कि साहिल बेटा तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा इस सब में कोई कसूर नहीं है, जो कसूरवार है उसने अपना जुर्म खुद तस्लीम कर लिया है, यानी इस सब में समद मिला हुआ है और तुम्हें फंसा रहे हैं ये लोग। जिसके बाद साहिल अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा कि सब मुझ पे ही क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं, अम्मी आप जानती हैं कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद नादिया बीबी साहिल से कहती है कि हाँ साहिल मुझे पता है तुम मेरे बेटे हो, तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद साहिल अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी साहिल अपनी वालदा से कहता है कि अम्मी मुझे लगता है अब कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब खराब हो जाएगा। जिसके बाद नादिया बीबी साहिल को समझाती हैं। साहिल से कहती हैं कि साहिल तुम्हें परेशान और दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा इस मामले में कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपके ख्याल में क्या समद और ज़ेबा सिराज साहब की असलियत, सिराज साहब का घिनौना चेहरा सबके सामने ले आएंगे? अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिए। यानी ये कुछ चीजें जो कि आप ड्रामे से फांस के नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में देखेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और मेरा चैनल सुपर ड्रामा रिव्यू को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको हर नए आने वाले लेटेस्ट ड्रामे के रिव्यूज मिलते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।